To begin with, let's first understand. See, we need to follow three steps. We need to follow three steps in order to rectify an error in our books of account. First step is to identify the type of error. Identify the type of error. Whether this error is error of omission, error of commission, compensating error, or error of principle. Then second step is to identify whether it's a one-sided error, to identify whether the error is one-sided, the error is one-sided or two-sided. Fine. Then the third step is to identify that at which stage the error is identified. That is, whether the error is identified before the preparation of trial balance or after the preparation of trial balance. Whether the error is identified before the preparation of trial balance or after the preparation of trial balance. Before the preparation of trial balance or after the preparation of trial balance. Because if it is identified before the preparation of trial balance, we are going to rectify it by passing a single statement. But if it is a one-sided error, if it is one-sided error and it is identified after the preparation of trial balance, then it has to be rectified through suspense account. Now let's recapitulate. बेटा all of us know कि जो हमारे परचेज अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, इट्स एन एक्सपेंस अकाउंट, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. फाइन. परचेजेस अकाउंट हैज ऑलवेज गॉट डेबिट बैलेंस. यानी कि परचेजेस इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी और अगर परचेज को मुझे डिक्रीज करना है तो जस्ट दी ऑपोजिट क्रेडिट होगी. और इसके ऑपोजिट होता है परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा. अगर परचेज का डेबिट बैलेंस है तो परचेज रिटर्न जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है. सो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है. देन सेल्स. सेल्स अगेन इज अ नॉमिनल अकाउंट, इनकम जनरेट होती है और सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. सेल्स जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है. And sales return just the opposite. So sales return account जब भी इंक्रीज होगा यानी कि हमारी जब भी सेल्स रिटर्न होगी हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट होगी. सो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है. Now let's discuss the different types of errors and how are we going to rectify them. The first error is, let's say, purchase book is overcasted by rupees 5,000. Fine. Purchase book is overcasted by rupees 5,000. देखिए बेटा फर्स्ट स्टेप क्या था? टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर. नाउ दिस इज द एरर ऑफ ओवरकास्टिंग. This is the
एरर ऑफ ओवरकास्टिंग, और ओवरकास्टिंग एरर किसके अंदर आता है? एरर ऑफ कमीशन के अंदर. फाइन, दिस विल बी एरर ऑफ कमीशन. Second is we have to see whether it's a single sided error or a double sided error. Okay, now see purchase book, अगर आप recall करो बेटा, तो हम जब भी purchase book बनाते हैं, है ना, let's say this is our purchase day book. Purchase day book. Fine. Let's say creditor 1 से हमने परचेज करी, लेट्स से 2000 की. क्रेडिटर 2 से हमने परचेज करी, लेट्स से 1000 की. फाइन, दिस इज द डिटेल कॉलम एंड दिस इज द अमाउंट कॉलम. और टोटल मेरा परचेज अकाउंट का टोटल को हम क्या करते हैं? डेबिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं. लेट्स से दिस इज 3000. And now this is the recording of the credit purchase in purchase day book, and then we finally post the total of the purchase day book in purchase account on the debit side. Purchase account की बेटा debit side पे हम लिख देते हैं to total transferred from purchase day book. Fine, total transfer from purchase day book and this total is 3000. और फिर हम जब लेजर पोस्टिंग करने लगते हैं तो क्रेडिटर के दोनों क्रेडिटर 1 का भी लेजर अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर 2 का भी लेजर अकाउंट बनेगा. तो क्रेडिटर 1 के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, एंड दिस अमाउंट इज 2000. एंड क्रेडिटर 2 का अगर हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिटर 2 के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस, दिस इज 1000. अब आप देखिए बेटा, जब ये अकाउंट क्लोज होंगे तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर परचेजेस अकाउंट 3000 आ जाएगा और क्रेडिटर 1 और क्रेडिटर 2 के बैलेंसेस क्रेडिट साइड में 2000 और 1000 आ जाएंगे. फाइन. अब लेकिन हमसे गलती क्या हुई है? हमसे गलती हुई है एरर ऑफ ओवरकास्टिंग, यानी कि परचेज डे बुक का जब हमने टोटल किया 3000 का, 3000 की बजाय ओवरकास्ट हो गया बाय 5000. लेट्स से 3 का ये 8000 बन गया. तो ऑब्वियसली ये 8000 पोस्ट भी हो गया होगा, लेकिन क्रेडिटर के अकाउंट में करेक्ट चला गया. सो हम क्या कहेंगे? दैट दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल साइडेड एरर. So second step में we have identified that this is single sided or one sided error. Now the last step 3 के बेसिस पे बेटा हम डिसाइड करते हैं. अगर तो ये एरर हमने आइडेंटिफाई कर दिया बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर the preparation of trial balance, तो बेटा अभी ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस के ट्रायल बैलेंस में हमने लेजर अकाउंट्स की बैलेंसेस की पोस्टिंग नहीं करी है ना. सो बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो हम क्या करें? हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे लेजर अकाउंट के अंदर ही. अगर परचेज बुक ओवरकास्ट हुई है, मुझे परचेज बुक का बैलेंस रिड्यूस करना है ना, रिड्यूस करना है, तो मैं परचेज बुक को क्रेडिट कर दूंगी क्योंकि परचेज बुक का डेबिट बैलेंस था. सो आई विल राइट क्रेडिट साइड पे लिखना मतलब बाय एरर ऑफ ओवरकास्टिंग rectified in purchase account. Fine. And the amount is 5000. Fine. But in case the error is rectified after the preparation of trial balance, यानी कि लेजर अकाउंट की टोटलिंग करके
हम उसके बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर चुके हैं. So if the error is identified, not rectified, if the error is identified after the preparation of trial balance, single sided error है बेटा, सिंगल साइडेड एरर है, फाइन, और एरर ऑफ कमीशन है, तो ऑब्वियसली जब ट्रायल बैलेंस में गया होगा तो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस हमने सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दिया होगा. तो अब हम जब इसको करेक्ट करेंगे तो परचेज अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, क्योंकि परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, वो इंक्रीज है, उसको कम करने के लिए क्रेडिट करना है. सो परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट. फाइन. सो माय रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 5000. फाइन बेटा, ये पहला जो ट्रांजैक्शन ली थी इसमें तीनों स्टेप्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए. सेकंड स्टेप को और डिटेल में एक्सप्लेन किया था ये बताने के लिए सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड है. फाइन. अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मैं यही स्टेप बहुत इजीली कैसे इसको सॉल्व कर सकती हूँ. सी परचेज बुक ओवरकास्टेड है, यानी कि परचेज अकाउंट में इफेक्ट आया है, दैट्स इट. फाइन. और परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, ओवरकास्टेड है यानी कि बढ़ा हुआ है, मुझे उसके बैलेंस को रिड्यूस करना है, यानी कि परचेज अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना होगा. सिंगल साइडेड एरर है, अगर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई होगा, तो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. एंड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो हम सिंगल स्टेटमेंट से इस एरर को रेक्टिफाई कर देंगे बाय posting this entry in the purchase account on the credit side by error of overcasting rectified in purchase account rupees 5000. Now second error is purchase return book is overcasted by rupees 2000. Fine. Again, first step अगर आइडेंटिफाई करें, it is the type of error, purchase return book overcast हुई है, so same error of commission, error of casting, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं किसके अंदर, एरर ऑफ कमीशन के अंदर. अगेन ये सिंगल साइडेड एरर होगा. स्टेप 2 टू आइडेंटिफाई whether it's a single sided error or double sided error, so it will be a single sided or one sided error. रीजन कि परचेज रिटर्न बुक का ही टोटल 2000 से इंक्रीज हो गया, गलती हो गई कि परचेज रिटर्न बुक का टोटल 2000 से इंक्रीज हो गया, सो इट्स अ वन साइडेड एरर. थर्ड, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे ये देख के कि ये कब आइडेंटिफाई हुआ. अगर तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आइडेंटिफाई हुआ है तो हम इसको एक सिंगल स्टेटमेंट से रेक्टिफाई कर देंगे बाय पोस्टिंग द एंट्री इन द परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. फाइन. अब ये क्रेडिट बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हमने इसको परचेज रिटर्न को डेबिट करना है. ओवरकास्ट का मतलब बेटा बढ़ा हुआ है, तो परचेज रिटर्न बुक को ठीक करने के लिए मुझे परचेज रिटर्न बुक को डिक्रीज करना है. सो डिक्रीज करने का मतलब मुझे परचेज रिटर्न बुक को डेबिट करना है. सो आई विल राइट टू एरर ऑफ ओवरकास्टिंग in purchase return book or purchase return account rectified. फाइन. सिंगल स्टेटमेंट से हम इसको पास कर देंगे on the debit side of purchase return book.
परचेज रिटर्न अकाउंट ₹2000 और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने रेक्टिफाई किया है, यानी कि सिंगल साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया होगा, तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही इसको रेक्टिफाई करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा कम करने के लिए, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई थी, टोटल इंक्रीज हो गया था बाय 2000। परचेज रिटर्न बुक को के टोटल को कम करने के लिए परचेज रिटर्न बुक शुड बी और अकाउंट शुड बी debited. So rectifying entry will be purchase return account debited to suspense account. We'll pass this entry in journal proper by ₹2000. I hope that the rectification of these two transactions are clear to everyone. So the next transaction, purchase books balance is carried forward in excess by 1000. अब बेटा क्या गलती हुई है कि परचेज बुक का जो बैलेंस था, जब हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया मे बी फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, तो वो बैलेंस ₹1000 से इंक्रीज हो गया। तो अगर हम कहें कि फर्स्ट स्टेप कौन सा टाइप ऑफ एरर है, दिस इज एरर ऑफ carrying forward, which is going to be classified under error of commission. नेक्स्ट इज, अब बेटा सिर्फ गलती किसमें हुई है, सिर्फ परचेज बुक का बैलेंस में ही गलती हुई है, यानी कि परचेज अकाउंट में ही गलती हुई है और कहीं नहीं हुई है ना। परचेज अकाउंट का जो टोटल था फिर वो 1000 से इंक्रीज हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन साइडेड एरर, वन साइडेड और सिंगल साइडेड एरर। फाइन, सो हाउ आर वी गोइंग टू रेक्टिफाइंग इट? अगेन two things, अगर तो this error is identified before the preparation of trial balance बनाने से पहले ही हमने identify कर लिया, तो परचेज अकाउंट में इसको ठीक कर लेंगे। परचेज बुक बैलेंस जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे वो ₹1000 से इंक्रीज हो गया था, यानी कि अब मुझे परचेज अकाउंट के बैलेंस को डिक्रीज करना है 1000 से। परचेज में डिक्रीज का मतलब कि परचेज अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है। सो आई राइट बाय error of carrying forward rectified in purchase account, मैं परचेज अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगी ₹1000, तो मेरा परचेज अकाउंट का बैलेंस जो कि 1000 से इंक्रीज हो रहा था वो कम हो जाएगा। दैट इज वाई क्रेडिट करूंगी, तो बाय हमने पहले लिखा है, यहाँ पर आगे लिखा। और अगर मैंने ये एरर को आइडेंटिफाई किया है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सिंगल साइडेड एरर है, तो ये सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेक्ट होगा। परचेज अकाउंट 1000 से इंक्रीज हुआ है, मुझे 1000 से इसको डिक्रीज करना है। परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट। सो माय रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट ₹1000। फाइन, अब बेटा from the next transactions what we are going to do now, हमारा ये जो फर्स्ट केस है बाय पासिंग अ सिंगल स्टेटमेंट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता। हमें रेक्टिफिकेशन थ्रू सस्पेंस अकाउंट ही 95% ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है। सो फ्रॉम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस वी विल बी रेक्टिफाइंग द एरर
by passing the entry in the journal proper through suspense account if it's a single-sided error. Now the next error is sales book is shortcasted by ₹4,000. Shortcasted का मतलब क्या हुआ बेटा कि सेल्स बुक का जो टोटल था वो 4,000 से कम हमने ट्रांसफर किया इन दी सेल्स अकाउंट. अब मुझे ये पता है कि सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि सेल्स जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है. फाइन. अब ये कास्ट शॉर्ट है, सेल्स अकाउंट का टोटल कम 4,000 से ट्रांसफर हुआ है, तो यानी कि मुझे सेल्स अकाउंट के टोटल को इंक्रीज करना है यानी कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है इन द रेक्टिफाइंग एंट्री. एंड बिफोर दैट, yes, what is the type of error? This is the error of casting. किसके अंदर क्लासिफाई होता है? एरर ऑफ कमीशन के अंदर. सिर्फ सेल्स बुक के अंदर ही, सेल्स अकाउंट के अंदर ही एरर हुआ है, तो ये सिंगल साइडेड एरर है. या हम क्या कहेंगे? वन साइडेड एरर है. और इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री. वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे बाय पासिंग एन एंट्री जिसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स के जो सेल्स अकाउंट का बैलेंस है उसको इंक्रीज करना है बाय ₹4,000. तो डेबिट क्या होगा? ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट. सो माय रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट क्रेडिट होने से सेल्स अकाउंट का बैलेंस 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा, जो गलती से टोटल करते समय 4,000 से डिक्रीज हो गया था. सो दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड rectifying entry, suspense account debited to sales account. The next error is sales return book is shortcasted by ₹500. Again, shortcasted है यानी कि ये हमारा बच्चे, यानी कि हमारा जो टोटल है वो सेल्स रिटर्न बुक का कम हुआ है बाय ₹500. So this is error of casting to be classified under error of commission. एरर सिर्फ सेल्स रिटर्न बुक को के टोटल में ही हुआ है, वो हमसे कम टोटल हुआ बाय ₹500. सो इट्स अ सिंगल साइडेड और वन साइडेड एरर. फाइन. अब आप देखिए बेटा, जो सेल्स रिटर्न बुक होती है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिटेड. सेल्स रिटर्न अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि सेल्स रिटर्न जब भी होंगी इंक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी, और अगर मुझे सेल्स रिटर्न को कम करना है तो मुझे उसको क्रेडिट करना होगा. फाइन. अब इस वाले केस में हमारे से क्या गलती हुई है कि टोटल कम हो गया है. सेल्स रिटर्न अकाउंट का टोटल 500 से कम हो गया है, तो मुझे सेल्स रिटर्न अकाउंट के टोटल को इंक्रीज करना है, यानी कि रेक्टिफाइंग एंट्री में मुझे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना होगा. सो सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड सिंस इट्स अ सिंगल साइडेड एरर it is going to be rectified through suspense account. So suspense account will be credited. So my rectifying journal entry will be sales return account debited to suspense account, amount 500. I hope that these transactions, rectifying journal entries of these transactions are clear to everyone. Now the next error, balance of sales book is carried forward short by ₹800. यानी कि सेल्स बुक के बैलेंस को एक पेज से दूसरे पेज में कैरी फॉरवर्ड करते समय टोटल कम फॉरवर्ड हो गया बाय ₹800. फाइन. सो अगेन इट इज गोइंग टू बी एरर ऑफ कमीशन, error of
कैरिंग फॉरवर्ड, जिसको हम क्लासिफाई करते हैं अंडर एरर ऑफ कमीशन। ये एरर बेटा हमारा सिर्फ सेल्स बुक में हुआ है, तो ये वन साइडेड एरर या सिंगल साइडेड एरर है। हमें पता है कि सेल्स बुक का हमेशा जब भी सेल्स होती है ना, जब भी सेल्स होती हैं तो सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये इनकम अकाउंट है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, यानी कि सेल्स जब भी इंक्रीज होती हैं हमेशा क्रेडिट होती है, और सेल्स अगर डिक्रीज करनी है, सेल्स का अगर अकाउंट मुझे बैलेंस डिक्रीज करना है तो मुझे उसको डेबिट करना होगा। अब यहाँ पर सेल्स बुक का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कम हुआ है 800 से, ठीक करने के लिए मुझे सेल्स बुक के बैलेंस को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है यानी कि मुझे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो मेरी और सिंगल साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई होगा। सो माय रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू sales account, suspense account debited to sales account, and the amount is 800. I hope that all of you have understood all the rectifying entries which we have discussed today and enjoyed the learning. That's all for today from my side. Practice as many questions, as many rectify transactions as you can. That's all for today from my side. Thank you very much.